की बेहतरीन हालत में हूँ. So Kurat is here. I'll be your mentor for this course. Just let me introduce myself. I'm Kuratulan. I have done my graduation in English language and literature, and I've done my MPhil in applied linguistics. I'm an entrepreneur and a writer. So let's talk about our course outline at the first. Okay, students. So हमारा कोर्स जो है इसकी आउटलाइन आपके सामने मौजूद है on your screen. Okay. आउटलाइन क्यों दे रहे हैं आपको? आउटलाइन देने का मकसद क्या है? आउटलाइन दिखाने का मकसद क्या है? ताकि आपको पता हो कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर गोना रीड. क्या आपको ये कोर्स आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना? आपको क्या पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में? आपको पहले द वेरी फर्स्ट डे हम आपको क्लियर कह रहे हैं, आपके साथ कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है एंड नथिंग एल्स. Okay. In lecture number 1, we'll talk about introduction to the course. What are the aims and objectives of spoken English? Why you have to learn English language? And we will talk about 7 C's of communication. के साथ ऐसे पिलर कौन से हैं जिन्हें सीख के हमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आ जाएगी या हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी. आपको पता है कि हमारे कोर्स का टाइटल स्पोकन कम्युनिकेशन भी है. तो उसका फायदा क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन आप देखेंगे कि आप लेक्चर नंबर 2 में हमारा फोकस होगा प्रोनाउंसिएशन पे. कोई भी लैंग्वेज है उसे किस तरह से राइटली साउंड करना है, दैट इज रियली कंपल्सरी. So we will study why it's compulsory to learn the sounds of words. What are the tongue twisters? Just like our Arabic qaida, there are few sentences in English language जिन्हें हम कहते हैं कि वो टंग ट्विस्टर्स हैं. उनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपकी क्या होती है, इंग्लिश बेहतर हो जाती है. ओके. सो फिर क्या है, हम देखेंगे व्हाट आर द फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश. फॉर्मल वेज क्या है इंग्लिश बोलने की, कौन सी वेज सीख के हम बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं. इन द वेरी फर्स्ट थिंग विल स्टडी हाउ टू से थैंक यू. ओके. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और फिर हम प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज करेंगे. व्हाट आर द साउंड्स ऑफ वर्ड्स, कि किस तरह आप राइटली वर्ड्स को साउंड कर सकते हैं. ठीक है. There is a lot of noise behind me. The reason is that my sister just came after almost 12 years from UK, and also she have 3 kids. So I just switched to headphones, and now I think now I'm sounding clear. Okay. In lecture number 3, we'll talk about parts of speech. What are the parts of speech and how we can use these parts of speech in English language. Then we'll also study tongue twisters and what are the formal ways of spoken English. We'll study how to say welcome. The very first thing, welcome as an answer to gratitude. If someone is saying thank you to you, how you will answer. After that, we will study welcome as a hospitality gesture. If someone came to your house, how you can welcome them, how you can simply say welcome to them. After that, in pronunciation exercise, we'll focus on sounds of words. In lecture number 4, we will talk about English grammar in use. We will talk about what is noun, we'll talk about what is pronoun and what is verb and their use in spoken English. After that, we'll study tongue twisters and we will study how to accept something in a very formal manner. Whether you are an entrepreneur, whether you are a student, whether you are a learner, whether you are a freelancer, there are certain ways how to say yes. तो वो yes आपने कैसे कहना है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे और फिर हम देखेंगे साउंड्स ऑफ वर्ड्स की हम बात करेंगे.
कि वर्ड्स को आपने राइटली किस तरह से साउंड करना है, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी है तो वो कैसे करनी है। इन लेक्चर नंबर 5 वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर इन यूज। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशंस को। Tenses क्या है बच्चों? On the basis of verb, we have divided all the text of this word into certain categories. के जमाने के लिहाज से चीजों को जिस तरह हम डिवाइड कर देते हैं, that is verb. And in formal ways of spoken English, we will study how to reject something in formal manner or what are the ways to say no. हम no कहेंगे तो हम किस तरह से कहेंगे. प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज की हम बात करें तो हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे और हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट आप उस प्रैक्टिस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कराओगे। लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और उनका यूज इन स्पोकन इंग्लिश देखेंगे। हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या है, सुफिक्स क्या है। एक्सक्यूज मी प्लीज। आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन, कि अगर किसी चीज के लिए परमिशन लेनी है तो किस तरह से परमिशन ली जाए। एंड व्हाट आर द करियर्स एज अ गुड कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेटर होने के बाद आप कौन से करियर्स को परस्यू कर सकते हैं। फिर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को देखेंगे, हम फाइवर को देखेंगे। जो लोग आपको कहते हैं कि कम्युनिकेशन सीख के आप कोई फ्रीलांसिंग सर्विस नहीं दे सकते, तो वो हम यहाँ देखेंगे। फिर हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस देखेंगे वाया डायलॉग्स। थैंक यू सो मच बेटे। आफ्टर दैट टेंसेस और फ्रीलांसिंग में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फिर हम देखेंगे पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के क्या टाइप है। फिर हम फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, किसी से बात शुरू करनी है तो हमने किस तरह से शुरू करनी है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम देखेंगे लिंक्डइन को और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे वाया डायलॉग। After that, in lecture number 8, we will talk about again about tenses and freelancing. हम future tense को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट पे हम किस तरह से एंड कर सकते हैं। एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? एक्सिलरीज क्या है जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो एक्सिलरीज हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में हम अमेजन को देखेंगे और यूट्यूब को। और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग्स। डायलॉग्स पे हम क्यों शिफ्ट हो गए हैं वर्ड से? क्योंकि डायलॉग में आप देखते हैं आपने रोल प्लेइंग किस तरह से करनी है। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एट रेस्टोरेंट, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। आफ्टर दैट in lecture number 9 we'll talk about vocabulary building and types of sentences. vocabulary building क्या है? vocabulary क्या है कि आपको किसी लैंग्वेज के कितने लफ्ज आते हैं, that is vocabulary. after that हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज क्या है। किसी लफ्ज को हमने न्यू लफ्ज लर्न करने हैं तो हमने किस तरह से करने हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं, जो लफ्जों के सिमिलर मीनिंग है वो क्या है, जिन लफ्जों के ऑपोजिट मीनिंग है वो क्या है, उनका लैंग्वेज में यूज क्या है। और फिर हम देखेंगे कि अगर किसी लफ्ज का हमें फॉर इंस्टेंस हमारे पास डिक्शनरी नहीं है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास गूगल नहीं है, तो एक सेंटेंस को पढ़ के हम किस तरह किसी का वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? देखो, एक हमने वर्ब पढ़ लिए जमाने के लिहाज से किसी चीज को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, जो टेंसेस होंगे। सेंटेंसेस क्या है कि कोई एक बात है तो उस बात को करने का पर्पस क्या है, ठीक है। और फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू शो योर सैडनेस, कि आप अगर सैड हैं तो आपने उस सैडनेस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है लैंग्वेज में। और हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी वाया डायलॉग। ओके, लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे। अभी कुछ देर पहले मैं आपके ओके ऑलराइट आपके सीनियर्स को यही लेक्चर पढ़ा रही थी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में क्या रिलेशनशिप है? एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है? आपने कन्वर्सेशन में इफेक्टिवली किस तरह रिस्पॉन्ड करना है कि अगला बंदा के वाओ व्हाट एन आंसर। After that, we'll talk about how group discussions are good for listening and speaking skills. We'll talk about connection between reading and speaking. After that, we'll study tips for improving reading comprehension. Reading comprehension आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनका पार्ट है।
और हम देखेंगे कि हमने वर्ड्स को किस तरह प्रॉपर इनोटेशन से और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन से बोलना है। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इडियम्स और स्लैंग्स क्या हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में हम क्या बात करेंगे? लेक्चर नंबर 11 में हम बात करेंगे एक्सप्लेनिंग ए टॉपिक पे। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी बंदे हैं, जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब आपको अपना टॉपिक किसी के सामने प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ऐसा ही है। तो अब वो प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। लाइक स्ट्रेटजीज क्या है कि हमने किसी चीज बात को एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सिंपल टर्म्स। हमने विजुअल एड्स यूज करनी है तो हमने उन्हें किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टॉपिक एक्सप्लेन आपने किस तरह से करना है। फिर हम देखेंगे कि अपनी एक्साइटमेंट शो करने की कौन सी वेज है इंग्लिश में। स्पोकन प्रैक्टिस में आपका क्यू कार्ड होगा। क्यू कार्ड क्या है बेटा? आपका आपको आइल्ट्स में एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप इसे देख लें। आफ्टर दैट आपने उस पर 2 मिनट तक बोलना होता है। तो दैट इज क्यू कार्ड। ओके, लेक्चर नंबर 12 में हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पे और अपने कोर्स का ओवरव्यू लूंगे। इंटरव्यू टिप्स और ट्रिक्स, किसी भी जगह हम जाए, हम इंटरव्यू देना पड़ता है। हम जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रेपरेशन करेंगे। फिर आफ्टर दैट हम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हमने इसे आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, लोग आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर वीकनेस। ठीक है, ये बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है इंटरव्यूज का। अच्छा, देन हम देखेंगे हाउ यू कैन यूज योर बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इन जॉब इंटरव्यूज। कि जॉब इंटरव्यूज में आपने कैसे जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। आफ्टर दैट मैं आपको अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन दूंगी और कोर्स रिव्यू आप करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप्स में बताऊंगी कि लैंग्वेज आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, बाकी 3 लेक्चर कहाँ किस चीज के हैं? अब वो बाकी 3 लेक्चर जो हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अपने मेंटोर से। ऐसी चीजें जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में समझ नहीं आई, ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपको आपके टीचर को बोल के आपको समझानी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्पोकन इंग्लिश अगर हमने सीखनी है तो उसका हमें फायदा क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर और एफिशिएंट कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। आफ्टर दैट फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस। इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपके जो आप अटक अटक के बोलते हैं, सोच सोच के बोलते हैं, उसमें बेटरमेंट आएगी। उसके बाद आप देखोगे कि वोकेबलरी आपने किस तरह से एक्सपैंड करनी है। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है। प्लीज इस दरवाजे को पूरा बंद कर दो, बहुत शोर आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट किस तरह से आपने करनी है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपने कैसे करनी है। क्लैरिटी किस तरह से इंप्रूव आप करोगे, आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस अंडरस्टैंड चीजों को किस तरह से करोगे। देन वी विल टॉक अबाउट ग्रामर एंड स्ट्रक्चर एज वेल, कि ग्रामर, सही ग्रामर के साथ आप किस तरह से अपने आइडियाज को कन्वे कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन, आपको पता है इंग्लिश इज अ लैंग्वा फ्रैंका। लिंगवा फ्रैंका हम इसे क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी जबान को इतना एडवांस्ड कर दिया है कि वो दुनिया की हर फील्ड में यूज हो रही है। सो जब किसी हम एक सादा सी बात है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने आपके डिजिटल लैंडस्केप को डोमिनेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके एल्गोरिदम्स जो हैं, हर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में। आपने उर्दू में वीडियो बनाई, आपने फेसबुक पे अपलोड करनी है, तो आप किस लैंग्वेज में रिप्लाई करेंगे? सॉरी, किस लैंग्वेज में अपने हैशटैग डालेंगे? इंग्लिश में। दिस इज हाउ दे मेड देयर लैंग्वेज अ नेसेसिटी। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एक नेसेसिटी बना दिया कि उसे सीखे बगैर आप डिजिटल वर्ल्ड में चल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यूज होती है। इंटरव्यूज है, मीटिंग्स है, प्रेजेंटेशन है, वहां आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। फिर लिसनिंग स्किल्स की हम बात करते हैं। लिसनिंग स्किल्स कि आप, कोई बंदा आपसे बोल रहा है तो आपने उसे किस तरह से
उसे रिस्पोंड करना है। ठीक है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जब आपको इंग्लिश आती है तो आपको पता है कि बहुत सी जगहों पे आपको इंग्लिश सबटाइटल मिल जाते हैं। उससे फायदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बंदा जिसे इंग्लिश आती है और उसे दूसरे कल्चर भी आता है, तो लोग आप किसे प्रेफर करेंगे? ऐसे बंदे को प्रेफर करेंगे जिसे आपके कल्चर का पता हो। ठीक है। अब अडेप्टेबिलिटी, डिफरेंट एनवायरनमेंट और ऑडियंस के साथ आपने इंग्लिश किस तरह बोलनी है, कैजुअली इंग्लिश कैसे बोलनी है, फॉर्मली इंग्लिश कैसे बोलनी है, एकेडमिक्स में कैसे बोलनी है, प्रोफेशनल में कैसे बोलनी है। ठीक है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे। बच्चों जिनकी स्क्रीन स्टक है उनका इंटरनेट स्लोअर, क्योंकि मैंने साथ अपने मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ है और मेरे स्क्रीन इमिडिएटली जैसे मैं उसे मूव कर रही हूँ वो चल रही है। ठीक है, आप जरा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। आप अपनी जगह बदल लें, जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिस चारपाई पे, जिस चेयर पे, जिस बेड पे आप बैठे हुए हैं, उसे उस जगह को बदल लें। अच्छा जी, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 ऐसी चीजें हैं, 7 ऐसी बातें हैं, अगर वो हमारी बातचीत में हो तो हम अच्छे कम्युनिकेटर। आप अब इन 7 के ऊपर आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूं या अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं, या मुझे कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी की 2 सेंसेस हैं। पहली सेंस ये है कि आपकी बात बिल्कुल क्लियर है, अगले बंदे को समझ आ रही है। और क्लैरिटी ये है कि क्या आप अगले बंदे को ऑडिबल भी हैं या नहीं है। जैसे अगर मैं बहुत आहिस्ता बोलना शुरू कर दूं तो आपको मेरी आवाज ही क्लियर नहीं आएगी, तो आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्लैरिटी कहते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? कि आप जो बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉन्शियसनेस। कंसिडरेशन मैं आपको सबसे एंड पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, कंप्लीटनेस, आपने जो बात की वो मुकम्मल है। ये नहीं कि एक बात आपने ये कही, मैं आपको कहूँ बच्चों आप लोग ना जूम की क्लास ज्वाइन करें, और दूसरी बात मैं ये कहूँ आज कितनी ठंड थी, तो क्या दोनों में कोई लिंक बनता है? नहीं बनता ना। तो ये कंप्लीटनेस नहीं है कि जो बात हमने की वो पूरी नहीं। खर्टसी, खर्टसी क्या है? कि एक बंदा, अब अगर मैं अपना टोटल लेक्चर इंग्लिश में कर दूं तो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा ही है कि समझ आ जाएगा, कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो हमें कोड स्विचिंग करनी पड़ती है, उर्दू से इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है। अच्छा, आगे क्या है? कॉन्क्रीटनेस, आपकी लैंग्वेज इतनी सॉलिड हो, आपकी बात इतनी पूरी हो, आपकी बात इतनी क्लियर हो, आपकी बात इस एक बंदे के लेवल के इतना अकॉर्डिंगली हो कि उसे इजीली वो क्लियर एंड कट उसे गेट कर ले। इसे कॉन्क्रीटनेस कहते हैं, मजबूती। करेक्टनेस, आप जो बात कर रहे हैं वो करेक्ट हो। अच्छा, मेरी बात सुने। एक अनदर थिंग, कि अगर आप कोई लफ्ज बोल रहे हैं तो कोई बंदा आपका दुश्मन भी है ना, वो आपको बता रहा है कि ये लफ्ज ऐसे बोलते हैं, तो जस्ट लर्न दैट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ये कहने की अच्छा क्यों तुमने हमें क्यों बताया। सही है, दिस इज हाउ यू लर्न। अच्छा, अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन क्या है? आप मजाक कर रहे हैं, आप किसी से सीरियस होकर बात कर रहे हैं, तो आप ऐसी बात ना करें कि अगले बंदे के इमोशंस हर्ट हो। इसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है? कि अगले बंदे के इमोशंस हर्ट ना हो। सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना होता है कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल इन योर क्लास, एट योर जॉब इंटरव्यू। बच्चों, आपके क्वेश्चंस के लिए लास्ट 5 मिनट मैं लेफ्ट रखूंगी। ठीक है, आप बाद में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पैनिक ना करें, हम साथ चलेंगे, हम टाइम देंगे पूरा आपको आपके क्वेश्चंस का। अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? यू हैव टू टेल देम अबाउट हु आर यू। अब मैंने आपका लेक्चर शुरू किया तो मैं आपको ना बताती मैं कौन हूँ, मैं बस आके बोलना शुरू कर देती। सर इमरान ना बताते कि कौन किसे वो
इनवाइट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बस मैडम एक मीटिंग स्टार्ट कर देती और उसके बाद मैं आके बोलने लग जाती, तो आप लोगों को क्या पता चलना था? आपने कहता ये कौन है, ये पागल लड़की कौन है जो बोली जा रही है? ऐसे ही है। तो ये क्या है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, मैंने बताया कि मैं आपकी मेंटोर हूँ और मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप क्या है, आप उसे इजीली गेट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आप कहीं भी खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकते हैं, जॉब पे इंटरव्यू में जाते हैं, पहला क्वेश्चन ही वो कहते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। आफ्टर दैट एट सम न्यू जॉब या किसी न्यू हॉबी पे आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, और किसी लार्ज इवेंट में या इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने भी। अच्छा, अब क्या है कि इसे हम बात तो शुरू करनी है ना, पाकिस्तान में हम क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब इंग्लिश में हमें एक ऐसी ग्रीटिंग चाहिए जो किसी रिलीजन से बिलोंग ना करती हो, जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, ठीक है? जिस तरह अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे को जिए भुट्टो कहते हैं, ठीक है? वो एक ऊंचा सा नारा लगाते हैं, जिए भुट्टो। आई जस्ट अटेंडेड देयर सोशल मीडिया कॉन्क्लेव, दे इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट स्पीकर। फैसलाबाद में अरेंज किया था, दे इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट स्पीकर। अब क्या था, वो वहां जैसे ही उनका कोई लीडर अंदर एंटर हुआ, आके नारा लगाए, जी ये भुट्टो, और आगे से वो पता नहीं क्या आंसर करते थे, आई डोंट नो। तो वो क्या है, वो उनकी ग्रीटिंग है, एक दूसरे को उन्होंने मिला और उन्होंने ये नारा लगाया, ठीक है? और इसी तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी करते हैं। तो जब उनका कोई लीडर आता है तो वो शेर आया के नारे लगाते हैं। तहरीक इंसाफ वालों का मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो नई नई जमात है। तो इस तरह की ग्रीटिंग्स हैं इनके आपस में, कि एक दूसरे को मिले, जिस तरह जो जर्मनी वाले थे वो एक दूसरे को हेल हिटलर कहते थे, ठीक है? वो ग्रीटिंग थी। अच्छा, अब क्या है, हेलो। हेलो है कैसी ग्रीटिंग है, कोई रिलीजन नहीं है इसके साथ अटैच, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं अटैच, सो यू कैन सिंपली से हेलो। अब एक, हाँ, एक ये चीज भी आती है कि अब बाज दफा हमें लोग कहते हैं कि आपने हेलो क्यों कहा, ठीक है? फोन आपने उठाया, आप उसके बाद कहते हैं हेलो, अगला बंदा उठाता है, हाँ बस अस्सलाम वालेकुम उसे कह लेते हैं, या वो अस्सलाम वालेकुम कह लेते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि अगला बंदा मुस्लिम है या नहीं, ठीक है? अब फिर क्या है, आगे हम यूज कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग हमने कब से कब यूज करना है? जब सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग की फ्रेज यूज करते हैं। फिर गुड आफ्टरनून आ जाता है, गुड नून क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि दोपहर तो बड़ी छोटी सी होती है, जो हम टाइम कहती है ना, मियाँ कहती हैं इस टाइम कुरान पाक ना पढ़ो, ये जवाल का टाइम है, 12 बजे के बाद 15 मिनट तक हम नहीं पढ़ते, कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो वो जवाल का जो टाइम है वो नून है, वो दोपहर है। सो देर इज नो फ्रेज ऑफ गुड नून इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ जी, आपको फेसबुक, आपने यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, इसीलिए तो सर ने आपको कहा था कि चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको अपडेट मिल जाए जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो। फिर गुड आफ्टरनून हम कहेंगे, गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद से लेकर दोपहर 5 बजे तक आप उसे गुड आफ्टरनून कहेंगे। आफ्टर दैट आप जब तक नहीं सोते आप लोगों को गुड इवनिंग कहते रहेंगे, ठीक है? और गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह गुड डे की फ्रेज यूज होती है इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन जो है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं कहते, वो गुड डे कहते हैं, जैसे हैव अ गुड डे। बट ये डे नहीं नहीं है वर्ड, दैट इज डे, से, वाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर हम गुड नाइट, गुड नाइट क्यों नहीं कहते रात के टाइम भी, अगर हम किसी मीटिंग स्टार्ट करते हैं? गुड इवनिंग ही क्यों कहते हैं? क्योंकि गुड नाइट एक कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज है, एक ऐसी फ्रेज है जिससे पे आप बात खत्म कर देते हैं। फिर आप क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी प्लीज, आई रियली अपोलोजाइज स्टूडेंट, आई एम जस्ट फीलिंग अंडर द वेदर, थोड़ी सी बीमार हो गए। ओके, आगे फिर, अब हर वक्त हमने ऑफिस में तो नहीं रहना, हर वक्त हमने डिफरेंट जगहों पे तो नहीं रहना, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं? हाय, हे, व्हाट्सअप, है, या व्हाट्स गुड, ये सारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है? और एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हेलो के आंसर में आप हाय कहते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अगर एक बंदा आपको हेलो कह रहा है तो आपने भी उसे हेलो ही कहना है। हाँ, अगर आप दोस्तों के साथ
साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, या ऐसी जगह पे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, तो आप उसे वहां हाई यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने अपना नाम बताना होता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हो आई एम। अब आई एम को अगर आप मिला लेंगे तो आप कहेंगे आई एम, या आप कह सकते हैं माई नेम इज। अब माई नेम इज बड़ी पुरानी सी चीज है, ठीक है, तो उसे आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? आप कह सकते हैं माई नेम, कि मेरा नाम ये है, ठीक है। और आर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। चैट